ابھی آپ کے سامنے قاری ساجد صاحب گنگنا رہے تھے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ قاری صاحب نقابت بڑھیا کرتے ہیں، مگر ماشاء اللہ وہ آواز ہے کہ اگر کشمیر کے وادیوں میں پڑھ دیا جائے تو برف کے ٹیلے پگھلنے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف آدھا گھنٹہ کے لیے حاصل ہوا ہوں، اس لیے کہ 8:30 بج چکا ہے۔ زیادہ سنانے سے فائدہ نہیں اگر ایک ہی بات پر عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو میں ایک ایسا شعر پڑھتا ہوں کہ اس مہینے میں میں اکثر پڑھتا ہوں، اور دربار خواجہ میں استاد زمن کا یہ شعر بڑے بڑے حرفوں میں لکھا ہوا ہے کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ کوئی بھی مانگنے والا ہو، کوئی محروم نہیں لوٹا، کوئی خالی نہیں لوٹا۔ امیر گئے جھولی بھر کے آئے، غریب گئے جھولی بھر کے آئے، فقیر گئے جھولی بھر کے آئے، کالے گئے جھولی بھر کے آئے، گورے جائے جھولی بھر کے آئے، یہاں تک کہ وقت کا بادشاہ ظہیر الدین باور جائے وہ بھی جھولی بھر کر کے آئے۔ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ اقدس میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے آنے والا امیر ہے، آنے والا غریب ہے، نہیں بلکہ صرف یہ دیکھا جاتا ہے آنے والا کس نیت سے آیا ہے، آنے والا کیا لینے آیا ہے، آنے والا کس حساب سے آیا ہے، کس چیز کو مانگنے آیا ہے۔ خواجہ غریب نواز کو دیکھنا چاہیں گے۔ میں کل سوچ رہا تھا اس واقعے کو بیان کروں، مگر میرے ذہن سے یہ بات نکل گئی تھی۔ آؤ دیکھو پیارے، خواجہ غریب نواز کے پیر کیسے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو مجھے اپنے مرید خواجہ معین الدین پر فخر ہے کہ وہ میرا مرید ہے۔ اللہ اکبر، پیر کا عالم کیا ہے۔ آؤ دیکھو جنت کی کیاریوں میں عثمان ہارونی کھڑے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری حاضر ہوتے ہیں۔ یا عثمان ہارونی، میں تو خلافت لینے آیا ہوں، میں تو ارادت کی نیت سے آیا ہوں۔ عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا معین جا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، 1000 مرتبہ استغفار پڑھ، اور 2 رکعت نماز پڑھ، اور جا 2 دن کے مجاہدہ کر لے، 2 دن تک مسلسل رب کی عبادت کر لے، تب واپس آ۔ 2 دن مجاہدہ کرتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں، بارگاہ عثمان ہارونی میں حاضر ہوتے ہیں۔ عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا معین ابھی بھی بیٹھ جاؤ، 1000 مرتبہ پھر استغفار پڑھ، 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ۔ غریب نواز عرض کرتے ہیں ایک عثمان ہارونی میں نے پڑھ لیا۔ عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا معین جب پڑھ لیا پتا آسمان کی جانب دیکھ کر کے آسمان میں کیا کیا دکھ رہا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں اے عثمان ہارونی آسمان دیکھتا ہوں اور کچھ نہیں ہے۔ عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا معین اب زمین کی جانب دیکھ کر کے پتا زمین میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ غریب نواز عرض کرتے ہیں اے عثمان ہارونی زمین ہے، کنکر ہے، پتھر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا معین قریب آؤ۔ خواجہ غریب نواز قریب ہوتے ہیں۔ عثمان ہارونی ارشاد فرماتے ہیں بیٹا معین اب عثمان کے انگلیوں کے کمان کے درمیان سے جانب آسمان دیکھ اور پتا کیا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز دیکھتے ہیں ابھی بغیر وسیلے کے دیکھ رہے تھے، کہہ رہے تھے آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، تارے ہیں اور کچھ نہیں ہے، روشنی ہے۔ اب جب عثمان ہارونی کے انگلیوں کے کمان کے درمیان سے خواجہ غریب نواز جانب آسمان دیکھتے ہیں، پکار اٹھتے ہیں اے عثمان ہارونی پہلا آسمان دیکھ رہا ہوں، دوسرا آسمان دیکھ رہا ہوں، تیسرا آسمان
चाँद छटा देख रहा हूँ, सिदरतुल मुंतहा देख रहा हूँ, लौह कलम देख रहा हूँ, यहाँ तक के अर्शे खुदाबंदी, यहाँ तक के मैं दीदारे इलाही से मुशर्रफ हो गया। ये है उस्माने हारूनी। अल्लाहु अकबर। ख्वाजा पाक पूरी होने आए हैं, बैत होने आए हैं। उस्माने हारूनी रब का दीदार करा रहे हैं, लौह कलम दिखा रहे हैं, अर्शे खुदा दिखा रहे हैं, सिदरतुल मुंतहा दिखा रहे हैं। अब उस्माने हारूनी इरशाद फरमाते हैं, बेटा मुईद, अब उस्मान की उंगलियों के कमर के दरमियान से जानिबे ज़मीन दिख और बड़ा क्या क्या दिखता है। वही ख्वाजा गरीब नवाज अभी कह रहे थे, ज़मीन दिखता है, कंकर दिख रहा है, पत्थर दिख रहा है, मिट्टी है और कुछ नहीं है। अब ख्वाजा गरीब नवाज जब उस्माने हारूनी के उंगलियों के दरमियान से देखते हैं, अर्ज़ करते हैं, उस्माने हारूनी, मैं ज़मीन के पहले तबके को देख रहा हूँ, दूसरे तबके को देख रहा हूँ, तीसरे चौथे पांचवें छठे यहाँ तक के तहत को देख रहा हूँ। अल्लाह के बनाए हुए 18,000 मखलूकात का मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ। उस्माने हारूनी कहते हैं, बस बेटा अब तू मुकम्मल हो गया, अब तू काबिल हो गया। बताओ ख्वाजा गरीब नवाज ऐसे है, अभी बैत होने के लिए आए हैं, ज़मीन ही नहीं बल्कि धातु सरा देख रहे हैं, अल्लाह के 18,000 मखलूकात का मुशाहिदा कर रहे हैं। आसमान ही नहीं बल्कि सातों आसमान देख रहे हैं, उसमें बसने वाले फरिश्तों को देख रहे हैं, बैतुल मामूर देख रहे हैं, हज़रत आदम को मुलाहिज़ा कर रहे हैं, हज़रत ईसा को मुलाहिज़ा कर रहे हैं, यहाँ तक के सिदरतुल मुंतहा, यहाँ तक के अर्शे खुदा, यहाँ तक हिजाब पड़ता है। ये ख्वाजा गरीब नवाज अपने रब के दीदार से मुशर्रफ होता है। अल्लाहु अकबर। सुनो प्यारे, जिस ख्वाजा का ये मर्तबा हो, बैत होने आए, दीदारे इलाही कर दे, अल्लाहु अकबर, उस ख्वाजा के मर्तबे का अंदाजा कौन लगा सकता है। और देखो प्यारे, यही हिंदुस्तान की सरजमीन है, जब आए रसूल अल्लाह के रसूल के हुक्म से हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए हैं। पृथ्वीराज चौहान हर तरह से तंग करके जब थक गया, आखिर आदमी का आखिरी हरबा होता है, पानी बंद कर दिया जाए। इंसान को पानी ना मिलेगा, इंसान भूखा रह सकता है, प्यासा नहीं रह सकता है, प्यासे मर जाएगा। और किस सरजमीन पर? ये रावलपिंडी जैसे जरखेज सरजमीन पर नहीं, बिहार झारखंड जैसे जरखेज सरजमीन पर नहीं, बल्कि अजमेर के राजस्थान के रेगिस्तान में उस जमाने में अल्लाहु अकबर धूप इतनी तेज थी कि लोग कदम कदम पर पानी पिया करते थे। फिर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, गरीब नवाज को पानी ना दो, मुईनुद्दीन को पानी ना दो, ये कई दिन रहेंगे, एक दिन प्यासे रहेंगे, 2 दिन प्यासे रहेंगे, पानी ना मिलेगा, वापस चले जाएंगे। मगर उसे पता नहीं था ये गरीब नवाज यहाँ इम्तिहान देने नहीं आए हैं, ये करबला नहीं, ये हिंदुस्तान है, ये करबला नहीं, ये अजमेर है, ये इमाम हुसैन नहीं, ये गरीब नवाज है। वहाँ इमाम हुसैन इम्तिहान देने गए थे, प्यासा रह करके इम्तिहान दिए। यहाँ गरीब नवाज मज़हब इस्लाम फैलाने आए थे, पानी को अपने कंट्रोल में करके, लोगों से अपना पावर बनवा करके, लोगों से अपने आप को लोहा बनवा करके, लोगों को अपने आप को मनवा करके मज़हब इस्लाम का प्रचार किया है। पृथ्वीराज चौहान ने ये सोचा पानी बंद कर दिया जाए, गरीब नवाज चले जाएंगे। एक खादिम को हुक्म देते हैं, बेटा जाओ, वज़ू का वक्त हो रहा है, पानी लेकर के आ जाओ। खादिम जाता है, देखता है पूरे अना सागर पर पहरा है। अल्लाहु अकबर। खादिम कहता है, मुझे पानी ले दिया जाए। एक पहरेदार कहता है कि सुनो तुझे पानी नहीं मिलेगा, वापस चले जाओ। अल्लाहु अकबर। उन्होंने कहा, ये किसका हुक्म है? पहरेदार ने कहा, ये बादशाह का हुक्म है, ये पृथ्वीराज चौहान का हुक्म है। जब तक तुम यहाँ से चले नहीं जाते, पानी तुझे नहीं दिया जाएगा। वो आदमी वापस आता है। एक गरीब नवाज पृथ्वीराज चौहान ने अना सागर पे पहरा लगा दिया है। गरीब नवाज के इरशाद फरमाते हैं, अच्छा पानी पे पहरा लगाया है, ये मैदान करबे बना दोहराना चाहता है। सुनो जाओ, मेरा एक पूजा उठा ले, मेरा एक प्यासा ले ले, और अना सागर से कहना मुईनुद्दीन हसन संजरी बुला रहे हैं, गयासुद्दीन का बेटा बुला रहा है, नबी का नवासा बुला रहे हैं। अल्लाह एक खादिम जाता है और जाने के बाद अना सागर के सामने खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं, ए अना सागर चल, तुझे ख्वाजा बुलाते हैं। अना
सागर मचल गया। अल्लाह अकबर। कि सुनो, जिस आदमी को भी खाजा बुला ले, जिस शेख को खाजा बुला ले, वो अपने मुकद्दर पर नाज करता है। इसलिए शायर कहता है कि इरादे लाख बनते हैं, बनकर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं, जिन्हें खाजा बुलाते हैं। अल्लाह अकबर। वही खाजा के पास जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं। पानी ने कहा या खाजा बुलाते हैं, चलो मैं चलता हूँ। पूरा आना सागर एक छोटे से प्याले में समा गया। जो अजमेर गए हैं वो देखा होगा, मैं भी गया हूँ। मैंने बोट पर चढ़ करके मैंने सफर किया, देखा। अल्लाह अकबर। इतना बड़ा आना सागर कि अपने भाई चुन में भी पानी बिल्कुल कम ना हो, वो पूरा आना सागर एक प्याले के अंदर समा जाए। आदमी हैरान रह जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। ये वाली को मोहम्मद एक पूरा आना सागर ही नहीं बल्कि 500 आयतों में है पूरे अजमेर का पानी, कुएं का पानी खुश्क है, तालाब का पानी खुश्क है। लोगों ने जो बर्तन में पानी रखा था वो पानी खत्म है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो सुनो, कुछ लोग मेरे आका के इख्तियार पर हमला करते हैं, मेरे आका के ऊपर हंसते हैं और ये कहते हैं ये सुन्नी मुसलमान कहा करता है कि देखो मैदाने महशर कायम होगा, लोग नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, परेशानी के आलम में होंगे। ये सुन्नी मुसलमान कहता है कि हम लाखों करोड़ों हैं, अल्लाह के रसूल के दामन में छुप जाएंगे। तो माशाअल्लाह इनके नबी का दामन की साइज क्या है, इनके नबी के दामन कितना बड़ा है, ये सारा लाखों करोड़ों गुनहगार माशाअल्लाह ये खुले के दामन में समा जाए। तो सुनो, एतराज हुआ था इस बात पर कि अल्लाह के रसूल का दामन कितना बड़ा होगा कि हम जैसे करोड़ों गुनहगार छूट जाएंगे। गरीब नवाज ने अजमेर की सरजमीन से जवाब दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एतराज हुआ अल्लाह के रसूल के दामन करम पर। ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में रह करके यहाँ के लोगों को जवाब दिया, ए लोगों सुनो, जब उनका नवासा पूरे आना सागर को कुर्सी में रख सकता है, ये क्या बड़ी बात है। अपने दामन करम में अल्लाह के रसूल मैदान कयामत में हम गुनहगारों को छुपा ले। और सुनो प्यारे, कुछ लोग आज ये भी एतराज करते हैं, ये बात कहा करते हैं कि माशाअल्लाह इमाम हुसैन करबला की सरजमीन पर पानी के लिए मोहताज थे। जब मोहताज की बात आती है गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन से उन यजीदियों को भी जवाब देते हैं। यजीदियों हुसैन के एक बच्चा, हुसैन उनके पुस्तिका एक बच्चा, हुसैन मेरे आकाओं के आका है, उनके गुलामों का गुलाम जब इतना पावर रखता है उन पर पानी बंद कर दिया जाए तो पूरा आना सागर समेट ले। अगर मेरा आका हुसैन चाहते तो पूरे मैदान करबला का पानी ही नहीं, सिर्फ फुरात ही नहीं, पूरे इराक का पानी अपने कदमों में डाल सकते थे। हुसैन पावर दिखाने नहीं गए थे, इमाम हुसैन वहां इम्तिहान देने गए थे। इसलिए इमाम हुसैन ने फुरात को अपने कदमों में नहीं बुलाया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, पूरा आना सागर एक कुर्सी में समा जाता है, खातिम लाता है, ये गरीब नवाज, ये सरकार मोइनुद्दीन हसन संजेली पूरा आना सागर ले आया हूँ। अल्लाहु अकबर। गरीब नवाज इरशाद फरमाते हैं पानी रख दो। अल्लाहु अकबर। कुछ देर के बाद जब लोग पानी लेने गए, क्या देखता है आना सागर में पानी नहीं है। लोग कुआं के पास गए, क्या देखते हैं कुआं में पानी नहीं है। कि लोगों ने अपने घरों में पानी रखा था, जब खले के पास जाता है क्या देखता है पानी नहीं है। पूरे अजमेर में एक वादिया बन जाता है, पानी नहीं है, एक कतरा नहीं है। गर्मी का जमाना है, रेगिस्तान का एरिया है, हम प्यासा कैसे रह सकते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। बादशाह तक ये खबर पहुंचती है। एक पृथ्वीराज चौहान, सुनो सुनो, आपने एक फकीर के ऊपर पानी की पाबंदी लगाया है। वो फकीर इतना पावरफुल है कि उनके ऊपर पाबंदी लगाने के बाद वो फकीर आना सागर ही नहीं पूरे अजमेर का पानी अपने कब्जे में कर लिया है। उन्हें प्यासा रखना था, वो सैलाब है, हम प्यासे हैं। उन्हें भूखा रखना था, वो सैलाब है, हम भूखे हैं। उन्हें भगाना था। अब नौबत ये है कि अजमेर से वो नहीं, हम यहाँ से ही
ہجرت کرنے والے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے اب میٹنگ رکھتی ہے، کیا کیا جائے؟ آپس میں مشورہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو ان کے بارگاہ میں، یہ بڑے رحمتی ہوتے ہیں، یہ بڑے مہربان ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو پیارے، دیکھو آقا کائنات کے اوپر مکہ والوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دیا۔ کبھی آقا کائنات کو آقا کائنات کے لیے کنواں کھودا گیا، کبھی آقا کائنات کے اوپر اوجھلی رکھی گئی، کبھی آقا کائنات کو طائف میں لہو لہان کیا گیا۔ ہر مرتبہ آقا کائنات کہا کرتے رہے، یہاں تک کہ فتح مکہ کے دن جب میرے آقا مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اہل مکہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے اہل مکہ بتا تیرا کیا خیال ہے، میں تیرے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ اہل مکہ کہتا ہے اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ رؤوف ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ مہربان ہیں، میں جانتا ہوں کہ ہمارا یہ جرم ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے، آپ ہماری گردنیں مار سکتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں آپ ایسا نہیں کریں گے، اس لیے کیا آپ اتنے رحم دل ہیں، آج تک کسی کو نہیں ستایا ہے، آج تک کسی سے اونچی آواز میں باتیں نہیں کی ہے، آج تک کسی پر تلوار نہیں ماری ہے، آج تک کسی سے لڑائی نہیں کیا ہے، یقیناً آپ ہمیں معاف کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے اہل مکہ گواہ ہو جاؤ، میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ اور ایک بات میں بتاؤں، سب سے بڑا دشمن رسول جو تھا وہ ابو سفیان تھا، پورے عرب میں یہ چرچا تھا، ابو سفیان کے گھر میں ہر میٹنگ ہوتی ہے، آقا کائنات اور مسلمانوں کو کیسے پریشان کیا جائے، ابو سفیان آگے آگے رہتا ہے۔ میرے آقا جب مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اہل مکہ سے ارشاد فرماتے ہیں جتنے لوگ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا ان سے کوئی بات پوچھ نہیں کی جائے گی، ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ لوگ بھاگے بھاگے ابو سفیان کے گھر آ رہے ہیں، ابو سفیان پریشان ہے، اے اہل مکہ میرے گھر کیوں آ رہے ہو؟ مکہ کو مسلمانوں نے فتح کر لیا ہے، محمد ابن عبداللہ کی حکومت ہو گئی ہے، میں سب سے بڑا ان کا دشمن ہوں، میں سیدھے سالارے کفار ہوں، میں یہاں کا مالک ہوں، میرے گھر میں کیوں پناہ لیتے ہو؟ میرا گھر توڑا جائے گا، میرے بچوں کو مارا جائے گا، میرے گھر سے دور ہو جاؤ، اپنے گھروں میں چھپو۔ اہل مکہ نے کہا تھا اے ابو سفیان تو یہ سوچتا ہے تجھے مارا جائے گا، تجھے پریشان کیا جائے گا، نہیں، اللہ کے رسول کا یہ حکم ہے کہ جو بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اسے بخش دیا جائے گا، ان سے گناہوں کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ ابو سفیان حیران ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، کہ سب سے بڑا میں دشمن ہوں، مجھ پر ہی رحمت کی بارشیں ہو رہی ہے۔ ارے جس نبی کا یہ آیاتہ ہو، جس نبی کی شان یہ ہو، اسی نبی کے گھر والے ہندوستان میں راجہ کریم نواز آئے تھے، اسی کے نوازے تھے۔ اللہ اکبر۔ پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ چلو ان کے گھر والوں کے بارے میں جانتے ہیں، پتھروں کی بارش کرنے والوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں، گڈھے کھودنے والے کو گڈھے سے نکالا کرتے ہیں، گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں، اور ان پر ظلم کے انتہا کرنے والے کو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ میرا یقین ہے، چلو خواجہ کے پاس، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، چلو معین الدین کے پاس، چلو اس فقیر کے پاس، یقیناً وہ معاف کریں گے۔ اللہ اکبر۔ پرتھوی راج چوہان اپنے لشکری کے ساتھ، اپنے سپہ سالار کے ساتھ، اپنے بزرگ کے ساتھ غریب نواز کے پاس آتے ہیں۔ اے آقا معین الدین، یقیناً ہم آپ کے نہیں ہیں، مگر ہم نے پڑھا ہے، ہم نے سنا ہے، ہم جانتے ہیں آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ لوگوں کو پریشان نہیں کرتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے رہتے ہیں، لوگوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اے معین الدین، ہم سے غلطی ہوئی، معاف کر دیا جائے، ہمیں پانی لوٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھو وہ پرتھوی راج چوہان ایک بے ایمان ہو کر کے جانتا تھا پانی جو خشک ہوا ہے، پانی جو ختم ہوا ہے، اس میں نہ چاند کا دوش ہے، نہ سورج کا پاور ہے، نہ زمین میں کوئی چیز ہے، بلکہ یہ اللہ والے جو نبی کے ہوتے ہیں وہ پاور فل ہوتے ہیں۔ آج کچھ لوگ انکار کرتے ہیں اللہ والے کو کوئی پاور نہیں۔ سنو، تمہارے انکار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس زمانے کے کافر جانتے تھے
बड़ी तीन पावरफुल है, इन्हीं के पास पानी के लिए चला जाए। वो अपने बुतखाना में नहीं गए कि चलो दुआएं करते हैं, अपने रब से मांगते हैं, अपने अच्छे लोगों से दुआ कराते हैं। नहीं, गरीब नवाज की बारगाह अक़दस में अपनी झोलियां फैलाए हैं। एक गरीब नवाज पानी दे दिया जाए, अल्लाहू अकबर। कैसे लौटाता गरीब नवाज ने, आज तक किसी को नहीं लौटाया है। अल्लाहू अकबर। अपने खादिम से कहते हैं कि बेटा पानी ले जाओ, ये कूजा ले जाओ, ये प्याला ले जाओ, अरा सागर में डाल दे। अल्लाहू अकबर। अरा सागर में पानी डालना था, पूरा अरा सागर लबरेज हो जाता है। अजमेर के कुएं में पानी आ जाता है, लोगों के घरों में पानी आ जाता है। अल्लाहू अकबर। देखो प्यारे, ये है खाजा, इतना अता कर रहे हैं कि जो अपने नहीं है उसे भी दे रहे हैं। क्या चीज दे रहे हैं? सबसे बड़ी नेमत दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। वो साज़े ज़मन कहते हैं कि ख्वाजाए हिंद वो दरबार है आला तेरा, महरूम नहीं कभी मांगने वाला तेरा, महरूम नहीं कभी। तकबीर। जिंदाबाद। ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद। हिंदुस्तान के सुन्नी मुसलमान जिंदाबाद। नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। रिसालत या रसूल अल्लाह। मौलाना अरशद जमाली साहब क़िबला जिंदाबाद। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में आप दिल से मांगो, गरीब नवाज देंगे प्यारे। ये नवाज नहीं के लिए आए हैं। अल्लाहू अकबर। देखो प्यारे, ऐसा होता है ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह अक़दस में जाने वाले अच्छे भी जाते हैं, जाने वाले बुरा भी जाया करते हैं। जब दिन का इंतजाम किया जाता है, मेरे वालिद साहब सेक्टर में ऐलान करते हैं अपने हक हलाल की कमाई डालना ला करके। हर दिन ऐलान करते हैं कि देग रखी हुई है, अपने हक हलाल की कमाई डालना। गरीब नवाज की बारगाह में 2 नंबर 2 नंबर की कमाई में डालना। अल्लाहू अकबर। देखो प्यारे, मैं एक वाकया बताता हूँ। मेरा शहर भागलपुर से कुछ लोग अजमेर शरीफ जा रहे थे। जब जाने वाला जा रहा था, लोग टिकट कटवा चुके थे। एक आदमी था जिसका 2 नंबर का धंधा था। अल्लाहू अकबर। पैसे की कमी नहीं थी। लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा ख्वाजा गरीब नवाज के पास जा रहे हैं। कहा कि सुनो, उनकी बारगाह में गरीब जाते हैं। कहा नहीं, वो बारगाह है जहाँ गरीब ही नहीं बल्कि ज़हीरुद्दीन बाबर जैसा बादशाह भी अपने हाथों को बांध कर खड़े हुआ करते हैं और औलाद की भीख लिया करते हैं। अल्लाहू अकबर। उनकी बारगाह में जाओ, रुपया मांगो रुपया देंगे, पैसा मांगो पैसा देंगे, औलाद मांगो औलाद देंगे, सेहत मांगो सेहत देंगे, तंदुरुस्ती मांगो तंदुरुस्ती देंगे, अपने लिए जमीन मांगो जमीन देंगे, और जो मांगना है मांग, दुनिया मांगोगे दुनिया देंगे, आखिरत मांगोगे आखिरत देंगे। अल्लाहू अकबर। उस आदमी के दिल में ख्याल आया, मैं भी जाऊंगा। मुझसे पूछा क्या लेकर के जा रहे हो तोहफा में? कहा कि सुनो सुनो, हम लोग चादर लेकर के जा रहे हैं। वो बड़ा आदमी था, 2 नंबर का धंधा करता था, बड़ा ही कीमती चादर खरीदता है, अपने सूटकेस के अंदर रखता है और रख देने के बाद अजमेर पहुंचता है। सारे लोग मिल जब अजमेर पहुंचते हैं, आपस में इकट्ठा होते हैं, कुछ अगरबत्ती फूल खरीदते हैं, सब मिल करके जाते हैं, गरीब नवाज के रोजे पर चढ़ा देते हैं, वापस आ जाते हैं। घूम फिर करके जब वापस आते हैं, सारे लोग होटल में बैठे होते हैं। ये जब अपनी अटैची को किसी जरूरत से जब खोलता है, क्या देखता है? यही चादर है, गरीब नवाज के पास अभी मैं चढ़ा करके आया था। अभी ये महसूस होता है मैंने इसे निकाला ही नहीं है, ये चादर मेरे सूटकेस के अंदर है, मेरी अटैची के अंदर है। अल्लाहू अकबर। सुनो प्यारे, वो अपने साथियों से सवाल करता है, ये लोगों ये बताओ, मैंने चादर चढ़ाया ना, आपने देखा? हम लोगों ने देखा आपने चादर चढ़ाई। वो सवाल करता है कि मैंने चादर चढ़ा दिया ना? लोगों ने कहा हाँ देख लिया, चादर चढ़ा दिया। अब उन लोगों को बोल नहीं रहा है कि मेरी चादर मेरी अटैची में वापस आ गई है, चुपचाप रहता है। लोगों से कहता है अभी कितना दिन रुकना है? कहा 3 दिन रुकना है। अल्लाहू अकबर। रात की तारीकी होती है, जब कुछ अंधेरा छा जाती है, वो आदमी
आदमी फिर चादर को चुपके से निकालता है, अपने बगल में दबाता है, भीड़ को चीरता हुआ जाता है, गरीब नवाज के रोजे पर डाल देता है, मज़ार अक़दस पर चढ़ाता है, फिर वापस आ जाता है। फिर घूम फिर करके जब अपने कमरे में पहुंचता है, जब फिर अटैची खोलता है, हैरान रह जाता है, चादर अभी मेरी अटैची के अंदर है। अल्लाहू अकबर। रात भर सोता नहीं है, फजर की आजान के वक्त जैसे ही गेट खुलता है, सबसे पहले ये वो काम करता है, चादर को लोगों से छुपा करके अपने बगल में लेकर के जाता है, गरीब नवाज के मजार पर डाल देता है, फजर की नमाज पढ़ता है, फिर जब कमरे में आता है, फिर अटैची खोलता है, देखता है कि मेरे अटैची के अंदर फिर वही चादर है। अल्लाहू अकबर। परेशान हो जाता है। साथ वाले पूछते हैं, आ रहे थे तो बड़े खुश थे, या कोई मुसीबत आ पड़ी है, किसी ने पॉकेट मार लिया है, किसी ने छीन लिया है, या कोई चीज गुम हो गई है? उन्होंने कहा कि नहीं, सुनो, मैं सोचता था इस बात को किसी को ना बताऊं, मगर सुनो, जब मैं आया था, मैं एक चादर लेकर के आया था, लोगों ने कहा हाँ हमने देखा आपने चढ़ा दिया। कहा कि सुनो, तुमने देखा मैंने चढ़ा दिया, मैंने चढ़ाया भी था। मैं रूम के अंदर जब आया, वो चादर मेरी अटैची के अंदर में है। और सुनो, उस दिन से आज तक एक मर्तबा नहीं, मैं कई मर्तबा चादर चढ़ा करके आया हूँ, हर मर्तबा मेरी अटैची के अंदर वो चादर है। गरीब नवाज मेरी चादर को कबूल नहीं कर रहे हैं। अल्लाहू अकबर। लोगों ने कहा ये शेर साहब अभी तौबा कर, आप 2 नंबर का धंधा करते हैं, उसी पैसे से चादर लेकर के आए हैं। गरीब नवाज किसी के 2 नंबर के धंधे को कबूल नहीं कर सकता है। अल्लाहू अकबर। देखो प्यारो, ये वाकया बताना मकसद नहीं है, मकसद ये बताना था, जब भी मोहल्ले में ऐलान किया जाए, मालूम हुआ दिन में डेट चढ़ाए थे, अपने हक हलाल की कमाई ला करके देना, ताकि गरीब नवाज कबूल कर ले। अगर कभी चादर भेजो या अजमेर पैसा भेजो, इधर उधर से झूठ सही करके ना भेजना, बल्कि अपनी हक हलाल की कमाई भेजो, उस गरीब नवाज की बारगाह में भेजना जो गरीब नवाज है। आपके रुपये पैसे के मोहताज नहीं, हम भेज दिया करते हैं। अल्लाहू अकबर। गरीब नवाज जब देने पे आते हैं प्यारे, इतना देते हैं, लेने वाले को कहना पड़ता है बस, ले देने वाले नहीं कहते हैं कि मेरा दामन में मेरा रुपया खत्म हो गया है, नहीं, बल्कि अजमेर की सरजमीन पर आज भी गरीब नवाज का अगर 1-2 करामत हो बयान किया जाए, जब से गरीब नवाज को बाग में एक अकलांतर मिले हैं, उस वक्त से लेकर के सुबह कयामत तक हर दिन एक नया करामत है। आपने सुना होगा, गरीब नवाज के देग में गिरने वाला, कम देग में गिरने वाला बच्चा जिंदा निकला है। गरीब नवाज की बारगाह में जाने वाला अगर चाहे अपनी झोलियां खाली लेकर के जाए, अपने दामन को भर करके आए। एक आदमी मुझसे बहुत दिन पहले मिला था, मैंने उससे कहा आप हर साल जमीन खरीदते हैं और मैं देखता हूँ आप शाबान के महीने में जमीन खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि सुनो, मैं शाबान में इसलिए जमीन खरीदता हूँ कि पूरा साल मेरे पास इतना पैसा नहीं होता है कि मैं जमीन खरीद सकूं। मैं अजमेर जाता हूँ और गरीब नवाज की बारगाह में झोली फैला करके कहता हूँ, ये बादशाह हिंदुस्तान मुझे जमींदार बना दे, ये बादशाह हिंदुस्तान मुझे जमीन दे दे। हर मर्तबा आता हूँ, मेरी कमाई में इतनी बरकतें होती है, हर मर्तबा मैं 2 गुना जमीन खरीदता हूँ। तो सुनो प्यारे, मैं ये वाकया इसलिए बयान कर रहा था, आइए हम और आप भी गरीब नवाज के बारगाह में ये सदाई लगाए, ये इल्तिजा करे, ये गरीब नवाज आपकी बारगाह से फैज पाने वाला सही दिल पावर साहिब औलाद हो सकता है। आपकी बारगाह से अगर एक पीतल की बछड़ा गाय दूध दे सकती है, जब आपकी बारगाह में इतना ये है पूरा आधा सागर को सिमट सकते हैं, आप प्यार तो नीचे पाल के आग से बच सकते हैं। ये गरीब नवाज हम भी परेशान है, हम भी दुख और मुसीबत में है। ये गरीब नवाज हम मारे जा रहे हैं, हमारी इज्जत आबरू पर हमले किए जा रहे हैं। ये गरीब नवाज हमारी हिफाजत फरमा, हमें इतना दे दे, इतना दे कि किसी की बारगाह
में हम झोलियां न फैलाए, किसी की बारगाह में हम अपने हाथ को न पसारे। अल्लाहू अकबर। सुनो प्यारे, मैं आखिरी बात बता करके, मेरा आधा घंटा हो चुका है और मेरी तबीयत खराब है। अभी मैं साजिद साहब को हाथ दिखा रहा था, शायद के बुखार भी है। ये शेख बशीर साहब की मोहब्बत है, ये हमारे बड़े भाई है और उससे बड़े भाई हमारे शब्बीर साहब बैठे हैं। माशाअल्लाह, इन्होंने जब फोन किया तो मैंने कहा भैया गाड़ी भेज दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। ये आपकी मोहब्बत है, मैं हाजिर हुआ हूँ। सुनो प्यारे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। आज मैं बहुत परेशान था, आज दिन में मैं सोया नहीं। क्यों पता है? आप लोग सारे लोग जानते होंगे, कल कर्नाटका में एक मुस्लिम सब हिजाब पहन करके कॉलेज जा रही थी। लोग कुछ लोगों ने उसे देख करके मुस्लिम खालिद नारा लगाया। तो सुनो, एक बच्ची ने जवाब दिया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। सारे खामोश हो गए। तो सुनो, आज दिन में 2:30 बजे से उसी पर्दे के मुआफिक में हमारा हैशटैग ट्विटर पर चल रहा था, रोशन मुस्तकबिल की जानिब से। उनके सपोर्ट में हमने लाखों ट्वीट किया और ये बताने की कोशिश किया, हे बाल मुस्कान, तू अकेली नहीं है। अगर तू आगे बढ़ी है, इस कौम किसी भी बेटे आई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये लोगों देखो, इस्लाम की शहजादी अगर तन्हा भी है, शेरनी हुआ करती है, में नहीं आया करता है। देखो प्यारे, आज हमारा हाल क्या है? कुछ मुस्लिम बहनें पर्दा के लिए लड़ रही है, डट गई है, कॉलेज नहीं जा रही है, लोगों से मुकाबले कर रही है। और हमारी माँ बहनें बगैर निकाब के, बगैर हिजाब के उलवा करती है और ये कहती है फैजाने गरीब नवाज नहीं मिलता है। अरे सुनो, फैजाने गरीब नवाज उसी को मिला करता है जो कभी से फातिमा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो फातिमा की करीज होती है, जो आयशा सिद्दीका की करीज हुआ करती है, जो खदीजतुल कुबरा के बताए हुए रास्ते पर चला करती है। और गरीब नवाज उसी को नवाजते हैं जो माहे नूर गरीब नवाज के वालिदा के नक्शे कदम पर चले, गरीब नवाज का फैजान जारी होता है। तो सुनो प्यारे, आज हमने क्या कर दिया? आज दाढ़ी हमने छिपाया, आज तो पर्दा हमारी बहनें खोलती है। जब हमें हिजाब में देखा जाता है, लोग ये सोचते हैं कि इस्लाम में जरूरी नहीं, मगर सुनो प्यारे, ये इस्लाम में बहुत जरूरी है। पर्दे की अहमियत समझो, पर्दे का मतलब समझो। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक दुकान में आप जाइए, अगर प्लास्टिक से चॉकलेट निकल गया है, वो बाहर में रखा हुआ है, कोई लेगा? एक बच्चा भी आएगा, जब दुकानदार कहेगा वो खुली हुई चॉकलेट है, इसको ले ले बेटा, ये बच्चा कहेगा नहीं लूंगा। दुकानदार सवाल करेगा, वो खुली हुई चॉकलेट और प्लास्टिक में पैक चॉकलेट में फर्क क्या है? बच्चा भी कहेगा इस पर मच्छी भी बैठी होगी, इस पर चींटी भी बैठी होगी, इस पर गर्द भी गिरा होगा, इस पर धूल भी गिरा होगा। मेरा तमसील समझो, जो औरतें मेरा पर्दा खोलती है उस पर अच्छे भी नजर पड़ती है, बद नजर भी पड़ती है, अपना की भी नजर पड़ती है, गैरों की भी नजर पड़ती है। सुनो, एक चॉकलेट अपने पर्दे में ला करके पर्दे की अहमियत बता रहा है। तो जो पर्दे में होता है वो कीमती होता है। आपको मैं बताऊं, अगर ठेला बेचने वाला, ठेला पे फल बेचने वाला अगर केला छील करके रख दे, अगर फ्री में भी देगा एक घंटे के बाद, उस केला में कोई हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? इसलिए कि ये बेपर्दा है। केला वही खरीदा जाता है जो पर्दे के साथ रहता है, जो हिजाब में होता है। मेरी इस्लाम की शहजादियों, अपनी कीमत समझो। आप उस लायक नहीं कि आपको देख करके लोग आंखों की अय्याशी करे, लोग अपने बगलों में बैठाए, नहीं, बल्कि इस्लाम की शहजादियां बलका हुआ करती है। एक बात मैं बताऊं, एक अंग्रेज ने, जब एक आदमी यहाँ से हिंदुस्तान से एक आलिम साहब गए थे अंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड गया था, उसने कहा कि यार तुम मुसलमान लोग भी जो है ना, अपने औरतों को पर्दे में रखते हो, अपने औरतों को बंद करके रखते हो, अपने औरतों से किसी को मिलने नहीं देते हो, यहाँ तक
کے اگر کوئی بھی آ جائے اس سے ہاتھ نہیں ملواتے ہو. اس نے کہا کہ سنو تمہارے یہاں انگلینڈ میں ملکہ ہے, اس سے تم نے ہاتھ ملایا ہے؟ جواب دیا نہیں. کہا کیوں نہیں؟ کہا رہے یار وہ ملکہ ہے, سب سے نہیں ملتی ہے, سب سے ہاتھ نہیں ملاتی ہے, تو اس کے برابر کی ہوا کرتی ہے, اسی سے ملا کرتی ہے, اسی سے مصافحہ کرتی ہے. تو سنو اس عالم صاحب نے جواب دیا یہ تمہارے انگلینڈ میں ایک ملکہ ہے, عام لوگوں سے نہیں ملا کرتی ہے, مسلمانوں کے گھر میں رہنے والی ان کی بہو بیٹیاں بھی ملکہ ہے, ملکہ, اس لیے عام لوگوں سے نہیں ملا کرتی ہے, عام لوگوں کو نہیں دیکھا کرتی ہے. پیارے پردے کی اہمیت سمجھو, اپنی بہن بیٹیوں کو پردے میں رکھو, حجاب کے ساتھ باہر نکالو. میں کسی تعلیم کا دشمن نہیں, اب اپنے بچوں کو کالج بھی بھیجیے, اب اپنے بچوں کو یونیورسٹی بھی بھیجیے, اب اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجیے, مگر جو بالغہ ہو گئی ہے اسے حجاب کے ساتھ بھیجیے اور لوگوں کو یہ پیغام دے دیجیے کہ ہماری بال بیٹیاں حجاب میں رہا کرتی ہے, ان کی یہ اوقات ہے, یہ ملکہ ہے, یہ شہزادیاں ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے کے ساتھ ہو جاؤ. استاد زمن کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, محروم نہیں کبھی مانگنے والا تیرا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علیہ الا البلاغ.